ہم شیخ نہ لیڈر نہ مصاحب نہ صحافی، جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ معزز مہمانان اور میزبان حضرات کی خدمت میں میرا پرخلوص سلام۔ یہ نہایت خوشی کی بات ہے کہ سنجیدہ لوگ اب سوشل میڈیا جرنلزم کی طرف آ رہے ہیں۔ میں چند ہی باتیں آپ کی خدمت میں گزارشات کی شکل میں رکھوں گا، اس کے بعد میں چاہوں گا کہ یہ سیشن انٹریکٹیو ہو جائے 20-25 منٹ کے لیے، کیونکہ آڈینس میں لوگوں کو یرغمال بنا کر ان پر تقریریں جھاڑنا یہ روایت تو ہے، لیکن میں روایت شکنی کا جو ہے قائل ہوں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میں آپ پر اپنی تقریر کی بوچھاڑ کر دوں، لیکن چند گزارشات جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور امید ہے کہ اس سے بعض غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہو جائے۔ پہلی بات یہ ہے، اور یہ آپ نوٹ کر کے رکھیں اور لکھیں اپنے دل پر، کہ ہم مابعد صحافت کے دور میں we are already in the post-journalism world. The journalism which you recognized as something, some entity in some form is long gone. It's no longer there. جرنلزم کے تقاضے نہیں بدل گئے، جرنلزم ہی بدل گیا ہے۔ مے وٲتۍ کران صحافت 31 ؤری، 31 ؤریو مز گئی میں 21 ؤری تقریر تہِ کران۔ بہ ونو تہ تھوڑا سا یہ محفل لائٹ کرنے خاطر کہ صحافی یم سات محفلن مز بولان پتہ ونان یتھ صحافتس گو یہ یتھ ایرے گیرے تہ ژا یتھ من یتھس گو یہ اس یہ ات پہ اخ جوک اخ یہ اخ اشنا واق اسہ تمس خاندر، تمس دوست تہ تت سالس، یمو دوپک امس ترو تمس ناو بلال، دوپک بلال صٲبس ترو 3مس پورس پہ بستر۔ مے دوپک کیا جی؟ دوپن نظ منچان بس دلیل کیا دوپن نظ چرس چوان یہ ما چے شامس سگریٹ 2-3 تہ پتہ گژھِ تہ ڈسٹرب ماحول گژھِ بد۔ ٹھیک بلال صٲبس ترووُکھ 3مس پورس پہ بستر، 2-2:30 بج تن تہ ات گو نبر کن دڑام، یہ بلال صٲبٕے پیومت۔ امس درائے وۄنۍ سٲری تہ یہ گو تھوڑا سا ہوشیار، بلال بلے کیوں دلیل کیا تھانیا پیو ہیر کن دے پاگلا یا پیو ژٕے۔ So we are like Bilals of Kashmir. We think something is falling from grace, something is going haywire, something is losing the standard. But who is that something? Who? It's us. You pay us. Gonna dadam kya? Number A. Number which is social media aksar reality یہ نش فرار ممکن نہیں شن، اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے، you cannot escape it۔ میں آپ کو رائٹرز انسٹیٹیوٹ ہے ان کے کچھ سٹیٹس بتاؤں گا، ہر سال وہ جاری کرتے ہیں اپنی رپورٹ۔ دنیا سے 7.3 ارب آبادی، 5.3 ارب لوگ سوشل میڈیا پر ہیں، اور اس میں سے 3.5 ارب لوگ فیس بک کا استعمال کرتے ہیں۔ 3.5 ارب کا مطلب انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، بھوٹان، میانمار وغیرہ۔ فیس بک از ناٹ جسٹ اے بلڈی کنٹری، اٹس اے کانٹیننٹ۔ تو یہ تبدیلیاں جو ہے نا، تبدیلیوں کا رونا نہیں رویا جاتا، تبدیلیوں کا شعور حاصل کیا جاتا ہے۔ جب آپ تبدیلی کا شعور حاصل کرتے ہیں، آپ خود کو اڈیپٹ کرتے ہیں نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ، نئی چیزوں کے ساتھ۔ اور مجھے بہت اختلاف ہے ان چیزوں کے ساتھ کہ میں ابھی ریاض صاحب کو کہہ رہا تھا جینوفوبیا کا اردو میں کیا ہے، تو ہم لوگ سرچ کر رہے تھے تو ریختہ پہ ایک اچھا ٹرم ہمیں دکھائی دیا، خوف ناآشنائی، یعنی جس کو آپ نہیں جانتے ہیں آپ اس کو پتھر پھینکنے لگتے ہیں۔ ہے نسائی کہ عمران نائی کو بہت ہی اچھا
बच्चा है ये, आई लाइक हिज वर्क। बहुत सारे आप में से भी होंगे, माफी चाहूंगा चेहरे से नहीं जानता हूं। तो मेरे अपने दोस्त नाराज हैं चखल थकिम कलस ये कत में कर्म एक दफे अगर हालस मज रियाज सबस पता ये कलस खालन क्या रिकग्नाइज करने क्या एक्नॉलेज। अगर कोई फील्ड में आया तो ये मेरा फेलियर है कि अगर वो गलती कर रहा है, ये मेरी नाकामी है। मैंने कई लड़कों की हैंड होल्डिंग की है और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने कुछ किया, अल्लाह का करना था कि उनमें रिफाइनमेंट आ गई। तो रियाज साहब खुद डिजिटल से खौफ खाते थे और इनका माशाल्लाह लर्निंग कैपेबिलिटीज इतनी है कि 2 घंटे के बाद ये मास्टर बन गए। मसला ये नहीं है, हमें जिनोफोबिक नहीं बनना है। अश्विन तमन महल के होन पे बन किया कि वापर हूं जाए तो तुलन टूम। सहाफत एक बरादरी भी है, ये सिर्फ पेशा ही नहीं है। इसलिए सबकी रिस्पेक्ट कीजिए, सबको एक्नॉलेज कीजिए। यस, यू हैव टू कॉल सम पीपल आउट फॉर देयर थिएट्रिक्स, फॉर देयर नॉनसेंस विच दे एयर। एक तरफ हम देखते हैं एक बंदा जाता है लड़की वालों के यहां, वो उनकी वीडियो बनाता है, फिर दूसरे दिन लड़के वाले उसको बोलते हैं कि कुछ पैसा देंगे हमारा भी बनाइए, फिर वो भी नशर हो जाता है। ये काम पुलिस का है, आप क्यों कर रहे हैं? आप जर्नलिज्म कीजिए। और एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये चौथा सन्नती इनकलाब है, दिस इज 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और ये जान लीजिए आप माशाल्लाह सभी दानिश्वर हैं, पढ़े लिखे हैं। जब गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस इजाद किया तो किताबों की इशाअत हो गई, खासतौर से बाइबल की इशाअत हो गई। और हम लोग ऐसे लोग हैं, हम 300 साल तक कहते रहे कि हुरूफ मुकद्दस होते हैं, इनको प्रिंटिंग प्रेस में नहीं डालना है। तो इसलिए कुरान की इतनी तस्हील नहीं हुई जितनी बाइबल की हुई। ये जहालत की इंतहा है। प्रिंटिंग प्रेस के ईजाद होने और किताबें छापने के 100 साल बाद अंग्रेजी जबान में लफ्ज फैक्ट मुतारिफ हुआ। मुझे लगता है वी आर इन द गुटनबर्ग एरा। अभी हमारा सबसे जख्मी, सबसे ज़ईफ, सबसे अनएक्नॉलेज्ड, सबसे एब्यूज्ड लफ्ज अगर कोई है सहाफत में, वो है फैक्ट। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें 100 साल इंतजार करना होगा, बिकॉज इट इज 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 100 साल नहीं तो कम से कम अपने अपने रीजन्स में, अपने अपने फ्रेंड सर्कल्स में हमें ये कोशिश करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा आप मास कम्युनिकेशन से हैं या नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप में जील है, लेकिन आप पर यह फर्ज बनता है कि आप रियाज मलिक साहब से, डॉक्टर अल्ताफ साहब से, या उमर सुल्तान यहां बैठे, कई सारे सीनियर्स बैठे हैं, उनसे राबिता करें कि आज सहाफत ये कोई उतना रॉकेट साइंस नहीं है। मैं ये नहीं मानता हूं कि आप 5 साल डिग्रियां करते रहे। हाँ, डिग्री करें, रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हो सकता है आपकी जॉब लग जाए। और सहाफत अब सिर्फ खबरें पढ़ने तक महदूद नहीं है, सहाफत में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। आप सिर्फ खबरें बनाने के लिए नहीं है। अब टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है उसमें ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो एनालिसिस करते हैं, जिसको हम कैपेबिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं। अब कॉर्पोरेट में एक ब्रांच है जिसको हम कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस कहते हैं। J&K बैंक का बाकायदा एक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस डिवीजन है जिसमें कम से कम 10 सहाफी काम करते हैं। चुन जरूरी ये हर कंस सहाफी बन। किसी ने मुझे कहा कि मैं मनता ज्यादा पहां क्रिटिसाइज कर, मैं ये केस बना सही सहाफी। फिर मैंने उससे कहा, बेसिकली 400 साल से जिस कौम ने सिर्फ बेइख्तियारी देखी हो, पावरलेसनेस, ये पावरलेसनेस सिंड्रोम साइकोलॉजिकली पत अचान रगोरेशस मज पे कुन नत कुन जरिए पावर यहां असर्ट कर। आपने नोटिस किया होगा हर एक जर्नलिस्ट बनना चाहता है, क्यों? क्योंकि वो मिनिस्टर के साथ साइड में खड़ा होगा। फॉल्स सेंस ऑफ पावर, फॉल्स सेंस ऑफ स्ट्रेंथ। वह जर्नलिस्ट बनान बचा बे ब्या चीज ग कुन सात बड़ नामसायद हालातों में गुजरान, कॉजेज ऑफ पीस, वी लिव इन गैप्स। NGO बनान पे सारी खुद बड़ डिग्री गई सोशल एक्टिविस्ट। ओत फेसबुकस पे वचान यह सरसे साउथ एशिया सिंड्रोम पावरलेसनेस। कतन दुकानस लिखित नाव तमिस तान सुन, तथ तलकन लिखित साबिका दानिश्वर, फॉर्मर इंटेलेक्चुअल।
असल में ये गलती मतलब मर्ज की तह तक जाया जाना चाहिए। तो ये जो बीमारी हूं जड़ वचान अवे प्रेत कह यहां माइक तुलो नत कुछ मसले पढ़े लिखे लड़के हैं, अगर ये सेल्स में जाएंगे, अगर ये किसी और शोबे में जाएंगे तो कम से कम 40-50 हजार रुपए कमाएंगे। यहां ये जेब से कैमरा भी ला रहे हैं, वो भी ला रहे हैं, सिर्फ व्यूज देख रहे हैं। इट्स अ साइकोलॉजिकल डिजीज एक्चुअली। हाँ, अलबत्ता अगर किसी का अब शौक है, जील है, मैं ये नहीं कहूंगा सहाफत के साथ कोई मुकद्दस काज अटैच नहीं करना चाहिए। सहाफत इज टू सर्कुलेट फैक्ट्स, लेकिन जब फैक्ट जख्मी हो जाए, वो मजरूह हो जाए, तो फिर सहाफत भी मजरूह हो जाती है। तो आखिरी बात मैं ये कहूंगा वो ये कि जो लोग कैमरे पे आते हैं या जो लोग सबटाइटल्स लिखते हैं, उन लोगों को अशद जरूरत है ट्रेनिंग की। हाउ टू स्पीक टू कैमरा, इट्स अ डिफरेंट थिंग। अब मामला यह है कि लोगों के पास चॉइस ही नहीं है। वो सहाफत अच्छी करते हैं, जो गंदा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं कैमरे पे, मैं उनकी सहाफत लाइक भी करता हूं, कभी कभी अच्छा काम भी होता है, लेकिन वो बोलने का अंदाज, कैसे बोला जाए, इस पे काम कैसा किया जाए, इस पे कौन से रिसोर्सेज हैं यूट्यूब पर, इस पे कौन से ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं जो फ्री हैं, इसमें किसी उस्ताद साहब के पांव दबाने की जरूरत नहीं है। अपने फोन हाथ में है आपके, रिसोर्सेज आर अबंडेंट है, यू कैन लर्न हाउ टू स्पीक, हाउ टू राइट फॉर टीवी और हाउ टू राइट फॉर वीडियोस, सबटाइटलिंग कैसे करें, बाकी चीजें कैसे करें। या ट्रेडिशनल अभी हो रहा है, यहां डिजिटल जर्नलिज्म में मैंने कोई इतना इनोवेटिव या मॉडर्न या अप टू द मार्क या ऑप्टिमम लेवल का कोई ऐसा मेयारी वीडियो अभी तक नहीं देखा है। आई एम सॉरी, अभी तक नहीं देखा। तो इसमें वक्त लगता है। जब आप उस साइकोलॉजिकल डिजीज की गिरफ्त में हैं जहां आपको ये देखना है कि अच्छा मैं गई या ज़लश व्यूज नहीं में वो मैं कर पानी, फिर आप सहाफी नहीं है, आप मीडिया एंटरप्रेन्योर हैं। यू आर यूजिंग दिस मीडिया प्लेटफॉर्म टू अर्न समथिंग, मे बी फेम, false sense of power or some bucks from Facebook. अब मैं गुजारिश करता हूं कि अगर किसी के जहन में कोई सवाल है ताकि मुझे भी सोचने का मौका मिले, ये चंद मारूजात जो हैं इन पर मैंने रोशनी इसलिए डाली क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। माइक्स हैं आपको वहां पे या ऐसे ही? इट्स एवरीबडी इज ऑडिबल आई गेस। अक्सर बेशतर हमने हकीकत के डॉक्टर विदाउट प्रैक्टिस विदाउट डिग्री फील्डस में गसान उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो अगर सहाफत जमहूरियत सूरम स्तून रेस्पॉन्सिबिलिटी इस पे कोई कादगनिया अगर हम देखें, जैसे अंजुमन उर्दू सहाफत ने रिसेंटली अपना एक ग्रुप बनाया उर्दू की खिदमत के लिए, लेकिन सहाफत में ऐसा अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। क्या वजूहात इसके पीछे और क्या होने चाहिए इसके सुधार के लिए? देखें, पहले तो मैं ये बताऊंगा महकमा हेल्थ भी फिर जमहूरियत का चौथा सतून होता है, क्योंकि वो तो कदगनों में आएगा। जमहूरियत का चौथा सतून होने के लिए ये एक बहुत बड़ा एजाज है। जमहूरियत का सतून इसलिए है क्योंकि ये वॉचडॉग होता है। जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हैं वो कहीं अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ स्वे ना हो जाए, तो इसमें कोई आर महसूस नहीं करना चाहिए। एमजे अकबर ने कोई डिग्री नहीं की है, खुशमत सिंह वॉज नॉट ए मास कम्युनिकेशन ग्रेजुएट, सीमा मुस्तफा वॉज नॉट ए मास कम्युनिकेशन ग्रेजुएट, कई सारे बड़े बड़े नाम, कुलदीप नायर नेवर स्टडीड जर्नलिज्म, ही वॉज ए रिमार्केबल जर्नलिस्ट। ऐसा नहीं है, हमें जीनोफोबिक नहीं होना चाहिए। जो डिग्रियां लिए हुए हैं उनको एक गेटो में, एक एको चैम्बर में नहीं फंसना चाहिए। ये इस गई डिग्री वर्ड योस गोमुत अकलेट ये बेमर उर्दू साहित्य यम अंग्रेज वालन सत बेहवानी, चूंकि बुछुस यम सहाफतुक बतुक बुछुस पकान खुशकस ते आबस ते तो इमन बह जोर कर तुम कौन इन सह ना इन हेंग लगित कह दे जस्ट रिपोर्ट। तो यह एहसास कमतरी यह एहसास बरतरी तह एहसास कमतरी, यानी हे यार यह 12वीं पास लड़क अम बनोमुत बोटो तो अमिस हसा 1 मिलियन व्यूज मे कोर्मुत मास कम्युनिकेशन बस 4,000 पे लड़कान। यह एहसास कमतरी मज नबर नेरुन, क्या जमाना बदलो। आपने एलन मस्क का लेटेस्ट इंटरव्यू देखा, वो पिछले साल का? ही सेज आई डोंट नीड डिग्रीज, आई नीड फायर इन योर बेली, आई नीड पैशन एंड आई नीड नैक। नैक गई गस तगुन, प्रेथ कह तुल तूर तो लेतर सुमा बन छान, यह ननान
गडनेथै पत नना ये काम हमा कर वन सह कहावत दपान चाश तले नना बड़ कच वोर इसलिए यह करू वॉच अगर तिम असल करान तुम करू तिहद खुद बेहतर लेकिन ये कवानीन मत ढूंढे आप तिम नुक सा बैनिश कर बिकॉज देयर डेमोक्रेटिक राइट देयर आर नो लॉज येट वन कह लॉ कह वन केबल एक्ट बे IT एक्ट तो IT एक्ट में सिर्फ फेक न्यूज के खिलाफ कदगन है जर्नलिस्ट बनने के खिलाफ नहीं है। और कोई सवाल? हमारे पास जब कोई मसला आता है चाहे वो किसी की जमीन का मसला आता है, फैमिली डिस्प्यूट आता है या सब जुडिस कोई मसला आता है, हम उस चीज से दूर भागते हैं, हम वो काम नहीं करते। लेकिन हमारे साथी कुछ साथी रहते जो कि उनकी जो कि ड्यूडॉलजी में रहते कब इस तरीके के हमारे पास मामले आएंगे उनमें वो इंडल्ज होते हैं और फिर ब्लैकमेलिंग करना स्टार्ट करते हैं। जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे जैसे स्मार्ट सिटी है, पुल बन रहे हैं, वहाँ पे जैसे छोटे से क्रैक्स पर जाते हैं ठेकेदार को ब्लैकमेल करना स्टार्ट करते हैं। तो इन लोगों को हम कैसे अलग कर सकते हैं सर? You can report them. You can talk to the deputy commissioner. If God forbid he is not hand and glove with him, you can do that. मेरे एक रिश्तेदार जो हैं वो एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने मुझे फोन किया एक बार और बोला दुपने ये कुछ फला नीडलेस टू नेम द इंडिविजुअल मिस क्या दे दुपने या बनावा ये 4-way श्रीनगर बारामूला तुमने यहाँ अचानक तुम वीडियो तो पत वन है बह ये क्या था बह हूँ बस वह क्या वन तुम यह लाख रुपये दी। मैंने जब उसको फोन किया और उसका पोर्टल मांगा उसका एड्रेस, वो 2023 में बना है पोर्टल 2023। फिर मैंने हिस्ट्री निकाली तो उसका पहला नाम था क्या था खरगोश, फिर पता नहीं क्या बुछान ओसुस क्या था पत क्या था पत चालाक कोशुर पत क्या था पत वन न्यूज टाइटल वी डोंट वांट टू नेम हिम। तो ये एलिमेंट्स होते हैं। देखें सहाफत में करूं तो बदनाम ऐसे भी यहां डॉक्टर्स गुजरे हैं। मैं एक जगह एक दावत पे था तो बहुत बड़ा नाम हम 3 दोस्त थे 93 साल, अब उसका बेटा भी डॉक्टर है, हम बेटे की वजह से ही थे, वो दोस्त था मेरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये ब्लैकमेलिंग कल्चर के साथ। अस वो टेंटस लगे कैडिला टैग, सरपोशस लिखित रैनबैक्सी स्टिकर, दस्तरखान डॉक्टर स्मिथ क्लिन क्या कंपनी नाम एंड अदर्स दूसरे दवाइयों के ब्रांड्स जो हैं। दैट मीन्स ऑल द MRs हैड डिसाइडेड टू स्पॉन्सर दिस वेडिंग फंक्शन। तो ये भी है, वकला में है, पुलिस में है, खासतौर से पॉलिटिशियंस में है, तो सहाफी भी तो इसी समाज का हिस्सा है। अब चूंकि ये एक समाज का चेहरा सा लगता है आपको, इसकी विजिबिलिटी है, इमेजेसी है, सो इट्स विजिबल। तो जितना आप ज्यादा लोग अच्छे होंगे उतना क्राउड आउट हो जाएंगे गंदे लोग जो ये काम करते हैं। या तो उनको समझाइए या रिपोर्ट भी कीजिए इफ यू कैन बी सो करेजियस। मैंने खुद किया है जिंदगी में अपने ही साथियों के खिलाफ रिपोर्ट, जो कि हमारे अच्छे लोग हैं, लेकिन जब तक आप वो सबूत नहीं देंगे कि आप सहाफी होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी और एक अच्छे मुसलमान भी हैं, तो तब तक तो ये काम चलाने से, ये अंधेरे को आप गालियां देंगे उससे कुछ नहीं होगा। अंधेरे का इलाज क्या है? आपको क्या करना है? चिराग जलाना है, शमा जलानी है, रोशनियां करनी है जी। और कोई? जिस तरह हमने इवेंट में देखा कि जो क्रिटिसाइज ज्यादा हुआ वो सोशल मीडिया जर्नलिज्म का हुआ, लेकिन अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें, मेरे पास एग्जांपल स्टोरी पे जाता था, कई सैकड़ों किलोमीटर्स में निकालकर किसी का इंटरव्यू करता था, लेकिन जो प्रिंट मीडिया में स्पेसिफिकली उनकी बात कर रहा हूं वो फिर वीडियो डिलीट करते थे। आपको लगता है कि अब प्रोफेशन के बजाय ये बिजनेस बन चुका है? अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें, उसके साथ साथ सोशल मीडिया जर्नलिज्म की बात करें। एक सेकंड में जवाब क्या जरा रिपीट करेंगे प्लीज? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह हमने तनकीद का निशाना बनाया सोशल मीडिया जर्नलिज्म को, क्या प्रिंट मीडिया भी इसमें अकाउंटेबल है? क्योंकि मेरी एग्जांपल के मुताबिक मैं कई सैकड़ों किलोमीटर्स निकाल कर किसी का इंटरव्यू करता था, लेकिन जब एडिटर के पास वीडियो पहुंचा था वो कहता था कि वीडियो डिलीट करनी है क्योंकि आपने इस पॉलिटिशियन से ऐसा क्वेश्चन किया है, हमारे एड्स बंद हो जाएंगे। क्या ये प्रोफेशन कम और बिजनेस अब ज्यादा बन चुका है कश्मीर में? नहीं, सब इसको थोड़ा सा आप प्रैग्मेटिक अंदाज से सोचिए।
रिपोर्टर एक मुलाजिम होता है और अखबार का मालिक, जिसको अनफॉर्चुनेटली अक्सर चीफ एडिटर लिखा जाता है जबकि उसे चीफ एडिटर को हायर करना होता है। तो ये दूसरी चीजें हैं, ये तो मालिक की अपनी पॉलिसी होती है। और ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि हुकूमत के इश्तिहारात पर रिलाई करता है यहाँ का प्रिंट मीडिया, समझे आपको। तो ये आपको अखबार की पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता सोशल मीडिया ने आपको ये जो है ना, ये जो मुझे मौजू दिया गया था, ये जो शोर शराबा, क्रिंज कंटेंट, ये जो थिएट्रिक्स होता है मीडिया पे, उसके बगैर अगर आप चाहते हैं तो आप खुद अपने मालिक बन सकते हैं, अपने बॉस। यू कैन रन ए कंपनी। जितने पोर्टल्स ज्यादा होंगे अच्छे वाले क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जरूरी नहीं है कि आप हर ब्रेकिंग न्यूज पे लपकें। कंटेंट क्रिएट कीजिए, जैसे उमर ने कहा, कंटेंट क्रिएट कीजिए। जर्नलिज्म का क्या मकसद होता है, मैं आपको आज एक बात बताऊंगा, ये याद रखिएगा। पहला मकसद होता है टू इन्फॉर्म, दूसरा होता है टू एजुकेट, तीसरा होता है टू इंस्पायर, चौथा होता है टू एंटरटेन। लेकिन हमने सिर्फ लास्ट वाली टांग को पकड़ के रखा है। हम नगमे करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, देखते हैं वीडियो चले मुझ बिज बनाइयो है। आप इंस्पायर तो करें। स्टोरीज ऑलवेज सेल। आप माशाल्लाह सब लोग मुसलमान हैं, स्टोरी इंसान की सरिश्त में है। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसे बनाया है कि उसको सिर्फ स्टोरी समझ आती है। इफ यू आर इनटू कुरानिक स्टडीज, कुरान ने उसलूब ही स्टोरी का अपनाया, बल्कि एक चैप्टर का नाम ही सूरह कसस है। जब स्टोरी का अप्रोच आप अपनाते हैं तो आप लोगों को बड़ी बड़ी बात कह सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं, उनको प्रवोक कर सकते हैं सोचने के लिए। लेकिन स्टोरी तो हो वो। सुबह मेरा पोर्टल वाला निकलता है स्कूटी पे, शाम तक वो उसने 2 दुकानदारों की लड़ाई, मियां बीवी का झगड़ा और 2-3 वीडियोस बनाए होते हैं। कहां है स्टोरी? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज, दे आर स्कैटर्ड अराउंड, स्ट्रगलिंग टू बी टोल्ड। आपको सिर्फ कहना है, आपको ढूंढना है। हाँ, उसके लिए आपको मुताला करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। किसी बुजुर्ग ने कहा था, अगर आप 2 बातें कहना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2000 तकरीरें सुननी होंगी बेहतरीन वाली। अगर आप 2 जुमले लिखना चाहते हैं तो आपको 2 लाख अल्फाज पढ़ने होंगे, जिसका मतलब है 2000 किताबें। तो ये बगैर तैयारी के, बगैर किसी ग्राइंड में डाले हुए अपने आप को, सिर्फ माइक, इसमें एक पावर अटैच है। चूंकि मैंने 31 साल से अपनी किसी गाड़ी पे प्रेस नहीं चिपकाया और मैं हमेशा बीबीसी में नहीं था, एक ग्राउंड रिपोर्टर था। अपने आप को पहले अच्छा इंसान तो बनाएंगे। ये कॉन्फिडेंस की कमी है, ये शोर शराबा सब्स्टिट्यूट है वीकनेस का, इनसिक्योरिटीज का। हम लोग इनसिक्योर हैं, पावरलेस हैं। पहले आप एसर्ट तो कीजिए खुद को एज ए जर्नलिस्ट, अपने आईने में खुद से बातें कीजिए कि क्या मिछा के लवजमात मिछा पता खबर क्या गई, अंडरस्टैंड। अच्छा, कश्मीर की हिस्ट्री पढ़िए, कश्मीर में कुछ फेज गुम, तम सत डेवलपमेंट समझ कि क्या दिल रिंग रोड अगर यपर बनो अमुक क्या फायदे, यह कूत बड़ डेवलपमेंट। अगर ट्रेन यी तम सत फुटफॉल गए, कोई नहीं, कोई पोर्टल। जब यहाँ हालात दिगरगुम हो जाते हैं, पोर्टल गायब हो जाते हैं। मैंने किसी को नहीं देखा ग्राउंड पे। तो इसलिए आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए, आप चीजों को समझिए, एक दूसरे से बातें कीजिए, अपने असातिज़ा से मिलिए। यहां पे 5 यूनिवर्सिटीज हैं, 5 यूनिवर्सिटीज में मीडिया स्कूल्स हैं, इंक्लूडिंग 2 कॉलेजेस, बारामूला और विमेंस कॉलेज। जरूरी नहीं है आप मास कम्युनिकेशन है, जरूरी नहीं है आप ग्रेजुएट हैं या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। जाइए बोलिए मैं जर्नलिस्ट हूं, पोर्टल चला रहा हूं, मैं उस तरह से बात करें, 2-3 स्टूडेंट से करा हुए इंटरेक्ट, उससे आप तैयार हो जाएंगे। और कोई सवाल है या मैं आपसे इजाजत लूं? क्योंकि प्रोग्राम अपने इख्तिताम तक पहुंचा है। अब यहाँ पे गाजी सोहेल साहब, क्योंकि इन्होंने कुछ एजाज़ात भी रखे हैं, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं इनका नाम लेंगे और इनमें ये तकसीम किए जाएंगे। जज़ाकल्लाह। चलिए, अब प्रोग्राम अपने आखिरी मराहिल पे, बस कुछ मिनट इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहेंगे। तो मैं कुछ नोखे कलम की तरफ से कुछ दोस्तों और जो कुछ सहाफ़त में जो काम कर रहे हैं
उनके लिए थोड़ा बहुत हौसला अफजाई के लिए कुछ रखा है हमने। तो मैं गुजारिश करूंगा रियाज मलिक साहब को भी, नाजिम नज़ीर साहब को भी, उमर सुल्तान साहब को भी वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएं ताकि यहाँ से इनकी हौसला अफजाई हो सके। चेयर्स अगर 2-3 यहाँ पे आ जाती तो ठीक है, ये हटाइए आप। आप यहाँ पे 2 मिनट इनकी हौसला अफजाई हो जाती जी। बस जी, बस जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है ओके सर। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा मोहम्मद शफी लोन, जो नौ की कलम न्यूज़ बारामुल्ला से रिपोर्ट करते हैं। तो इनकी हौसला अफजाई के लिए मैं दावत देना चाहूँगा उमर सुल्तान साहब को, इन्हें ये नवाजें। आइए, ये हटाइए थोड़ा साइड में, हौसला अफजाई इनकी करें थोड़ी बहुत। तो मैं अब बुलाना चाहूँगा इक्स इकबाल, जो कॉलमिस्ट हैं, नौ की कलम के लिए लिखते हैं अंग्रेजी और उर्दू में भी माशाल्लाह। तो आप आएँ और रियाज मलिक साहब इनकी हौसला अफजाई कराएंगे। इक्स इकबाल जी, ये आप कश्मीर उज़्मा में भी लिखते हैं। डॉक्टर अल्ताफ सर, आप भी यहाँ पे तशरीफ लाएं। जी, कश्मीर उज़्मा में भी लिखते हैं अक्सर। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। तो अब मैं बुलाना चाहूँगा जी बुलाया जी, आइए सर। तो अभी हमारे दूसरे मज़हर इकबाल साहब पुंछ से हैं, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। सुहेल सालिम साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो नदीम अहमद मेरे भाई भी हैं लेकिन काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो नाज़िम नज़ीर साहब इनकी हौसला अफजाई फरमाएंगे माशाल्लाह। तो ये भी शाहिद तांतरे साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है। कारवान के हमारे जर्नलिस्ट उमर रशीद भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो डॉक्टर मंजूर नारवा वाला आपने देखा होगा फेसबुक पे